about acid and base. Yes, we learned about acids and base. That's good. Sit down, beta. That's good. Wait, Jashan, can you tell me the name of your class monitor? Jashanpreet, can you tell me the name of your class monitor? Yes. Okay. So please stand up. Monitor, please stand up. Aa beta. You sit, beta. Yes, come forward, beta. Now, can you tell me? Okay, okay. थोड़ा सा पीछे चले जाओ. Move a little bit back. Okay. थोड़ा सा पीछे जाओ so that I can see you. So we learned about acids and base. So how can we say that any XYZ substance is acid or base? How can we find that? I think Lotus camera is stuck. I think, yes, Lotus. Can you hear me? Your video is paused. Lotus. Okay, coming to daffodil then. Okay, meanwhile coming to daffodil. So daffodil, say aa jao Gurveer Singh. Gurveer Singh from daffodils. And firstly, come fast and turn on your Zoom mic because it's turned off. Okay? Yes, Gurveer. Beta Zoom se pehle mic on karo. Turn on your mic. Yes. Back. Or for friends. Yes. Now can you tell me the different acids and base? कोई खाने वाली तो उससे आप बता सकते हैं कौन सा बेस? Can you differentiate? Yes, beta. Voice clear नहीं आ रही. Okay, so I'm writing down the. What is the difference? Acid and base. How can you between acid and on the yes. Yes. Now you can see. Yes. Now. हम टेस्ट के बता सकते हैं. Do you know the answer? You were present with the You were absent? Yes. बेटा ये पढ़ना चाहिए था. मेरे सभी को from each and every. If you miss something, just go to the e-learning scanner in. Okay, if you miss, go through that. Okay, जो आपके लिए पूरी वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी. ठीक है? So now from daffodil, just Gurveer, call your best friend in and ask him to come. Who is your best friend? Call him. Yes, do call him. Yes, beta, jaldi come fast.
Now on the big, how can we differentiate acids and base? Acids are bitter in taste and slippery. Base is bitter in taste and slippery. Acids or Base is bitter in taste and slippery. That's right. And what about acid? And how? Yes, how? Yes. Lemon का क्या taste होता है? The taste of lemon. नींबू का जूस कैसा होता है? Acids are sour in taste. Acids are sour. That's right. Now sit down. Sit down, beta. So that's the correct. So acids are bitter generally sour, while bases are bitter and slippery. जो हमने last class में पढ़ा था. We already did this in the last class. But as I told you, we cannot taste each and every substance. I took the example of washroom cleaner, that is Harpic. ठीक है? We cannot taste it. We cannot put in our hand and then figure out ki is it acid or base. है ना? So there are some indicators that help us to find the nature of substance. Okay? But जो हम कहते हैं कि this is acid, this is base. How come we say that it's acid or base? कैसे पता लगता है? तो लिखो, write down. अभी सिर्फ लिखना है. I'm in detail we will discuss later on. ठीक है? Write down. Acids, they have more H positive ions, यानी हाइड्रोजन आयंस. ओके अभी आपके सिलेबस में हाइड्रोजन आयन नहीं है, सो जस्ट राइट डाउन दिस, जैसे मैं लिखवा रही हूँ, हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, दे हैव मोर हाइड्रोजन आयंस. इफ अ सब्सटेंस इज हैविंग हाई क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज एसिडिक. अगर बेस के लिए लिखेंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो वो बेस होगा. दैट इज बेस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास 3 क्लासरूम्स हैं. ओके, वी हैव 3 क्लासरूम्स. एक क्लास जो है फर्स्ट क्लास टोटली फिल्ड विद द स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल्ड अप हैं, बहुत ज्यादा. जैसे अभी आपकी क्लास में अगर मैं कहूँ 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग राइट नाउ, instead of 40 we are saying that 60 students are sitting in a single classroom. एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं और एक हमारे पास क्लास है, ठीक है, वी हैव वन मोर क्लास जिसमें जो कि 40 स्टूडेंट्स को बिठा सकती है, उसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स है. ओके, दैट इज हैविंग ओनली 10 स्टूडेंट्स. तो जो हायर वाला है, अगर हम एक बच्चे को प्रोटॉन ले लें या एक बच्चे को हाइड्रोजन आयन ले लें, सो वी कैन से इट इज एसिडिक. जहां पर ज्यादा बच्चे हैं, जहां बहुत कम है वी कॉल इट बेस. अब देखो एकदम ज्यादा है और एकदम कम है, देयर इज समथिंग इन बिटवीन देम आल्सो. जो एक क्लास हमारी खाली रह गई है, आई टोल्ड यू वी हैव 3 क्लासेस. एक में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, एक में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स. नाउ वी आर लेफ्ट इज वन क्लास दैट इज एम्प्टी. तो वो जो एम्प्टी क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, जो ज्यादा बच्चे हैं उसमें से कुछ शिफ्ट कर देते हैं या फिर हम कोई और क्लास के बच्चे ले आते हैं. So now this class is having around 30 students. तो 30 स्टूडेंट्स हो गए. पहली क्लास में 60 थे, अब 30 और एक में 10 है. तो 30 स्टूडेंट्स वाली क्या होगी ना, उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स हैं ना ही कम. तो कितने बच्चे, बीच के, नॉर्मल. सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल. तो हम कहेंगे ये क्लास न्यूट्रल है, ना ज्यादा है ना कम है. इज इट फाइन? व्हाट इज न्यूट्रल? डिड यू गेट इट? तो न्यूट्रल ना कम ना ज्यादा. ऐसे ही अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. सपोज यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो थे 100 थे, यहाँ पर वी हैव 10. ठीक है, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल. ठीक
ठीक है. If we say there is one more substance that we call neutral, तो उसके पास बीच का होगा. ठीक है. नॉर्मल number of H ions. So let's say कि इसके पास अराउंड 40, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस हैं. सो ना कम है ना ज्यादा है, तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे. एक हो गया एसिड जिसके पास ज्यादा है, एक हो गया बेस जिसके पास कम. और जब हम कोई चीज खाते हैं, अगर वो हमें खट्टी लगती है, वाई? बिकॉज आर टंग, जो हमारी टंग है, वो जो प्रोटॉन्स है, जो हमारे हाइड्रोजन आयंस है, उसको वो सेंस कर सकती है. ठीक है, ओनली हाइड्रोजन आयन. तो उसके बेसिस पे अगर उसमें ज्यादा है तो हमें वो खट्टा लगेगा, अगर उसमें कम है तो हमें वो कड़वी लगेगी. और अगर नॉर्मल है, जस्ट लाइक वाटर, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता. होता है कोई टेस्ट? पानी का कोई टेस्ट होता है? प्लेन वाटर, यस, प्लेन वाटर हैज एनी टेस्ट? यस और नो? यस के लिए ऐसे करो, नो के लिए ऐसे करो. बिकॉज यू आर ऑन म्यूट, सो आई कैन सी फ्रॉम दैट ओनली. तो नहीं होता है ना, नहीं होता. तो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उसके अंदर प्रोटॉन्स है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है, ना वो कम है ना वो ज्यादा है. अगर उसमें हम नींबू का जूस डाल दे, लेमन जूस डाल दे, देन इफ वी ड्रिंक देन, सो हमें वो क्या लगेगा? सार. व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज हैज मोर हाइड्रोजन आयन. और वही पानी में इफ वी ऐड बेकिंग सोडा, घर में होता है ना बेकिंग सोडा फॉर द बेकिंग केक एटसेट्रा, वी यूज इट. इफ वी ऐड बेकिंग सोडा इन अ वाटर एंड देन हैव इट, तो हमें क्या लगेगा? बिटर. क्यों? नाउ इट इज एज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपना, हमने लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट टूथ डिके. यस, लिटिल बिट वी डिस्कस अबाउट टूथ डिके. मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना? किस किस को कहा जाता है, किस किस को कहा जाता है घर पे मीठा मत खा ज्यादा, दांत खराब हो जाएंगे? किस किस को कहा जाता है? हैंड रेस करो. कौन मीठे का ज्यादा शौकीन है? रेज योर हैंड. ओके, रोज. ओह दैट्स मैनी स्टूडेंट. हाँ, मीठे के शौकीन है. सनफ्लावर में भी. डैफोडिल में किसी को नहीं कहते? कोई मीठा नहीं खाता? डोंट लाइक स्वीट्स. सब खाते हैं, सब हंस रहे हैं. मैं अपना नाम नहीं लूंगा ना लूंगी, है ना? सो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई बच्चा मीठा ना खाए. क्लास में बर्थडे होता होगा, टॉफीज का वेट होता होगा, एक दे रहा है या दो दे रहा है ना? यू काउंट दैट कि किसको एक मिल रही है टॉफी, किसको दो मिल रही है. अपने फ्रेंड को कितनी टॉफीज दे रहा है, ध्यान दिया जाता है इसमें? सभी का जाता है ना? सभी का जाता है ध्यान इस चीज में कि टॉफीज कितनी बांटी जा रही है, किस बच्चे को कितनी दी जा रही है. तो सबको मीठा पसंद है. अब आप में से यू रेज योर हैंड कि आपको घर पे कहा जाता है यू शुड नॉट हैव टू मच स्वीट्स. व्हाई? बिकॉज इट अफेक्ट आवर टूथ. हाउ? कैसे? मीठा कैसे हमारे दांत को खराब करता है? हु कैन टेल मी? किसी को पता है मीठा खाने से क्यों ऐसा होता है कि दांत खराब होते हैं? एंड व्हाई इट इज एडवाइज दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप वी शुड ब्रश आवर टीथ. क्यों सोने से पहले क्यों दांत साफ करने हैं? व्हाई? सुबह तो समझ आता है स्मेल आ रही है तो चलो लेट्स क्लीन इट, बट व्हाई व्हाइल स्लीपिंग? क्यों? सोते टाइम तो हमारा मुंह बंद रहेगा, किसको स्मेल आ रही है ना? व्हाई वी शुड ब्रश ड्यूरिंग नाइट? किसी ने सोचा है? ये सिर्फ कह दिया है पेरेंट्स ने, टीचर्स ने ब्रश करना है तो ब्रश कर रहे हैं. क्यों कर रहे हो तुम? व्हाई इट इज नीड टू ब्रश योर टीथ? रात को तो सोना ही है ना? सोते ही हो ना रात को, मुंह बंद करके ही सोते हो, है ना? तो फिर क्यों ब्रश करना है? व्हाई देयर इज नीड टू ब्रश टीथ? सो बेटा सुनो ध्यान से, ये हमारा टूथ है. हमने मीठा मीठा टॉफी खाया, ठीक है, अच्छी खासी टॉफी खा ली. सो व्हाट हैपन इन दैट केस? अगर जो टॉफी है वो आपकी स्टिकी होती है तो इट कैन स्टक ऑन योर टूथ, है ना? दांत में फंस सकती है. अब वो दांत में अगर फंसी रहेगी तो इट इज ए इन्विटेशन फॉर द, और इट इज ए पार्टी फॉर द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया को भी साथ में आप इनवाइट कर रहे हो, लेट्स डू पार्टी, है ना? तो अब यहाँ पर क्या होगा? some bacteria, okay, some bacteria will come here, okay, and what this bacteria is going to do? It is going to have this sweet,
उसको भी मीठा मीठा पसंद है, ठीक है, वो भी इस मीठे मीठी टॉफी को एंजॉय करेगा। लेकिन जब वो एंजॉय करेगा वो कुछ चीज रिलीज करता है, जो वो मीठा खाता है तो वो कुछ चीज रिलीज करता है, एंड दैट इज व्हाट इट रिलीजेस एसिड। क्या रिलीज करता है? इट रिलीजेस एसिड। और जब ये एसिड रिलीज होती है, व्हाट हैपन, कहीं भी एसिड अगर हो गिर जाए गलती से, जो हार्पिक है वो गलती से कपड़ों पे गिर जाए, या हार्पिक जो है किसी मार्बल वाली जगह पे गिर जाए, इट क्या करता है? इट बर्न्स, जला देता है। एसिड चीजों को जला देता है। सिमिलरली व्हाट इट इज गोइंग टू डू हियर, हमारे टूथ पे धीरे धीरे वो जो एसिड है वो क्या करती जाएगी? छेद करती जाएगी, एंड उसकी वजह से क्या होता है? टूथ कैविटी। तो रीजन क्या हुआ? जो शुगर दांत में चिपका रहा, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट स्टेप को ही क्लीन कर दे तो क्या होगा? बैक्टीरिया के लिए कोई पार्टी नहीं रहेगी, है ना। बैक्टीरिया कैन नॉट एंजॉय दिस पार्टी सिनेरियो, है ना। एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर टूथ टू बिकम अ विक्टिम ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, अब सोते टाइम क्यों? क्योंकि आपने डिनर किया है ना, सोने से पहले डिनर करोगे तो कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल विल स्टक, ठीक है, ऑन योर टूथ। किसी भी दांत में फंस सकता है, या टीथ में, बहुत सारे दांतों में भी फंस सकता है। सो हियर वी नीड टू ब्रश आवर टीथ सो दैट कोई चीज फंसी ना रह जाए, क्योंकि सोने से लेके जागने के बीच में बहुत बड़ा टाइम होता है, and bacteria has good time to utilize it to release acid and हमारे जो दांत है उसको खराब करने के। So to prevent this we should brush our tooth. Is it clear everyone? किस लिए? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरिया एसिड रिलीज करेगा, and it is going to corrode our tooth. Is it clear? Raise your hand if it's clear कि एसिड से हमारे दांत खराब होते हैं। डैफोडिल्स, इज इट क्लियर? ओके ओके, लोअर योर हैंड। सो दैट इज तो एसिड इज नॉट गुड फॉर अस, है ना। हमें अभी तक यही पता चला एसिड अच्छी नहीं है, हमारे दांत को सड़ा सकती है। बट डू यू नो इन आवर बॉडी देयर इज एसिड दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर अस। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट एसिड एंड वेयर इट इज प्रेजेंट? यस, रोज, आ जाओ बेटा। योर हैंड इज रेज्ड, गर्ल विथ पिंक बैग, जो नीचे है जिसका बैग। Yes, firstly turn on the mic. Yes, beta. Hydrochloric acid. Yes, hydrochloric acid, and where it is present? Stomach. Stomach. Can you tell me the role of that also? मैम पेट के अंदर जो जर्म्स है उसको मारता है। Germs को मारता है। Yes, you are very close to the answer, and that's really good. Clap for her. She knows very well. Everyone. Oh, she is right. It is hydrochloric acid. Write down the acid that is present in our stomach. Stomach में कौन सी acid present है? Write down. It's everyone write down this hydrochloric acid। और इसको हम, आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको ऐसे लिखोगे, कैपिटल H, कैपिटल C and small n। You will write it like this, hydrochloric acid, and it is very powerful in the sense it can burn things very fast, quickly, but still it is in our stomach. Why it is not burning our stomach then? So it's a protective layer. There is a protective layer around our stomach. जो हमारा stomach होता है ऐसे होता है, okay? तो उसके चारों तरफ from inner side, okay? In the inner side यहाँ पर एक लेयर होती है स्लाइमी, जैसे हम स्लाइम से खेलते हैं ना, वैसी एक लेयर होती है। That protects our stomach from the burning from this axial. And the axial role, one she told, kill germs. जब हम खाना खाते हैं तो कोई जर्म्स भी आ सकते हैं, तो कुछ जर्म्स जो उससे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, get destroyed. Otherwise there is one more role, it helps
HCl helps in digestion of food. कैसे करती है बेटा ये आप अभी आगे पढ़ोगे. When you learn nutrition in animals, you will learn how it helps in digestion. There is an enzyme, ठीक है, जिसको ये एक्टिव करती है. It helps in digestion. Right now we are focusing on this part. It helps in digestion. It kills germs, ठीक है. Is it clear, everyone? This is not harmful to us, although it is very powerful. It has good strength, ठीक है. So that is what. अगर now HCl अगर हम बाहर लेके आए, even in labs you have HCl. लैब में भी HCl मिल जाती है. You can commonly found in lab also. Now if we want, अगर हम चाहें कि जो हमारी HCl है, जैसे हम कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जरा सा एक ड्रॉप गिरा हमें बर्न कर सकती है और हमें यूज करना है इसे, तो हम कैसे यूज करें? सो वी समटाइम्स व्हाट वी डू, वी डाइल्यूट इट. किसी को ये वर्ड पहले सुना है, डाइल्यूट वर्ड? किसी ने सुना है? डिड यू हर्ड दिस वर्ड डाइल्यूट समवेयर? अच्छा नहीं सुना. कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेटेड सिरप, किसी ने सुना है? ये तो सुना होगा, नहीं सुना? गर्मी में कौन कौन जो है रूह अफ़ज़ा पीता है, या फिर वो जो फ्लेवर्ड वाटर बन जाता है जैसे ऑरेंज या लाइम या समथिंग लाइक दिस, कौन कौन पीता है? ओके, रोज में सभी पीते हैं. हाँ, सनफ्लावर में फ्यू स्टूडेंट्स, इन डैफोडिल्स, डैफोडिल में कोई नहीं पीता, रूह अफ़ज़ा भी नहीं पीते. अच्छा चलो, नहीं पीते, बहुत ही अच्छी बात है. हनी किस किस को पता? ये मत बोलना कि शहद नहीं पता. किस किस को शहद पता है और किस किसने शहद पिया है या खाया है? चलो शुक्र है, इसमें सभी ने हैंड रेज किया. दैट्स गुड. नाउ लोअर योर हैंड, ठीक है. अब जो हनी है, अगर उसको पानी में डाल दो, क्या वो वैसे रहता है चिपचिपा सा या फिर गाढ़ा? वैसे रहता है या थोड़ा क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है? पानी जैसा हो जाता है. टेस्ट तो आता है ना? वी कैन टेस्ट इट. ओके, इट लुक्स लाइक हनी ओनली, बट द टेक्सचर, मतलब उसको अगर हम छुए या उसको देखें, इट डजंट लुक लाइक सेम. यस, चेंज होता है, वैसा गाढ़ा नहीं रहता है ना, लिक्विड हो जाता है. इजंट इट? होता है, नहीं होता है? इवन रूह अफ़ज़ा, उसको अगर हम डालें दूध में या पानी में, तो क्या होता है? वो घुल जाता है और वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है. टेस्ट आता है हमें, वी फील द टेस्ट, बट इट इज डिफरेंट. उतना ज्यादा मीठा नहीं रहता. अगर हम सीधा रूह अफ़ज़े को लेंगे सो इट टेस्ट डिफरेंट. इवन हनी को लेंगे, उसका टेस्ट डिफरेंट, सीधा अगर ऐसे पियोगे. लेकिन अगर पानी में डाल के पीते, इट्स डिफरेंट. हमें लगता है टेस्ट है, ठीक है, हम बता सकते हैं इट्स हनी वाटर और इट्स रूह अफ़ज़ा वाटर, व्हाटएवर, है ना. दिस प्रोसेस वेयर वी आर मिक्सिंग, गाढ़ा वाला जो कॉन्सेंट्रेटेड, वो हम इसको गाढ़े को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारे पास सब्सटेंस है, उसको जब हम पानी में डालते हैं या लिक्विड में डाल रहे हैं ताकि वो उतना गाढ़ा ना रहे, सो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन. उसको डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है. तो आपने जो है, अब हमारे पास दिस इज HCl. अब हमने इसको लेस पावरफुल करना है, उसकी स्ट्रेंथ कम करनी है क्योंकि वो जला रहा है, लेकिन वी हैव टू यूज इट इन आवर लैब्स. सपोज करो आपको लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना है एंड देयर यू नीड दिस HCl. So what we are going to do, we are going to dilute it, means we are going to mix it with water. Now listen carefully. अब मुझे बताओ, घर में किस किस ने ये देखा है कि अगर कोई तेल गर्म हो रहा है, उसमें पानी का कोई ड्रॉप चला जाए तो स्पार्क होता है, खच 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 होता है? किस किस ने सुना या देखा है? तेल में गलती से पानी का ड्रॉप चला जाए, सभी ने देखा है, ठीक है, दैट्स नाइस. अगर हम इसी का उल्टा कर दें, बहुत सारा पानी और उसमें एक ड्रॉप ऑयल चला गया, तो कभी उसमें से सुना है खट 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 आवाज हो रही है? नहीं हो रही. नाउ व्हाई आई टोल्ड यू दिस हियर, दिस इज हाउ वी डू डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स. जो एसिड है, इसमें हम वाटर ऐड नहीं करते. वी डू नॉट ऐड वाटर इन एसिड. क्या होगा? एसिड इतनी ज्यादा है, पानी जैसे डालोगे पूरा का पूरा वो स्प्लैश होके, it comes on us, it can burn us. So we should never do this. We should never do this. Now, how can we dilute HCl then?
वी नीड वाटर फर्स्ट, हमें पानी ज्यादा लेना है, एंड HCl को, ठीक है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालना है. So this is how we do the dilution, and this is called dilution. Note down, this is called dilution. ठीक है? To reduce the strength of acid, we do dilution, and this is the right way to do dilution of acids. ठीक है? Is it clear? Oil वाला example याद रखोगे, then you can remember it. अब किसने लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिस्कस विद यू अबाउट द एसिडिटी, कि हमारे घर में हम अपने बड़ों से सुनते हैं आज बहुत बाहर का खा लिया, आज जो है पेट ऐसा लग रहा है बस फटने वाला है ना, डकार आ रहे हैं, खट्टे डकार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, दे कंप्लेन अबाउट दैट, दे से एसिडिटी हो गई है, मुझे एसिडिटी हो गई है. यस दे डू से, यस और नो. सुना है घर पे? हैंड रेज करो पहले, किस किसने सुना है, आई वांट टू नो किस किसने सुना है. सबने सुना है ना, सभी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दे कंप्लेंट अबाउट दिस, है ना. डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज दिस एसिडिटी? किसी ने कभी सुना, सोचा इस चीज के लिए एसिडिटी है क्या, ये क्या बोले जा रहे हैं एसिडिटी? किसी ने सुना या सोचा कभी इसके बारे में? ओके, अगेन वन स्टूडेंट, शी थॉट अबाउट दिस. ओके, अब जब एसिडिटी होती है, हु कैन टेल मी कि वो जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स है, व्हाट दे जनरली डू, क्या करते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी, व्हाट दे डू, हु कैन टेल मी, हु कैन टेल मी? ओके, रोज से तो बहुत स्टूडेंट, ओके रोज से सेकंड लास्ट बेंच गर्ल आ जाओ, सेकंड लास्ट बेंच आओ बेटा. इट इज वेरी जनरल, है ना, लाइफ टू लाइफ हमारे डेली लाइफ में जो चीजें होते हैं, लेट्स डिस्कस इट, है ना, उसी में देखते हैं कहां पर एसिड बेस है. यस बेटा, व्हाट योर एल्डर्स डू? मैम यस इनो, दे यस इनो लेते हैं, यस यू राइट. और कोई टैबलेट लेते हैं पिंक कलर की या व्हाइट कलर की, मीठी मीठी सी होती है, क्या कहते हैं उसको, कौन सी है वो, डू यू नो द नेम? Okay, so that is Digene basically, Digene. Okay, that's right. Means you observe that. You have good observation power. That's good, beta. That's really good. Good. Clap for her. Yes. Yes, sir. Sit down, beta. तो बेटा हम सब में ऐसी ऑब्जर्वेशन जो है होनी चाहिए. We should be alert. What is going around us? हमें पता होना चाहिए हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है. ठीक है. अब ये जो चीज है, why acidity में, why we should have ENO, why should we have Digene tablets in case of acidity? So as in last session we discussed about acidity. Acidity is what? हमारी बॉडी में एसिड तो है, as we discussed हमारे स्टमक में, ठीक है, in our stomach we already have acid, that is HCl. Just imagine in our stomach for the digestion we only need 5 ml of HCl, that is required. हमारी बॉडी में सिर्फ 5 ml का जो है HCl चाहिए for the digestion. But हमने बाहर से बहुत सारा जंक फूड खा लिया, हमने गोलगप्पे खा लिए, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया है, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पी ली. So what is going to happen? हमारा जो एसिड है उस पे क्या होगा, असर होएगा, इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. Now instead of 5 ml our body is having 10 ml of HCl. कितना चाहिए था, 5 ml, हमारा क्या बन गया, 10 ml. So what is going to happen? स्टमक क्या करता है, ऐसे ऐसे जो है खाने को पीसता है, ठीक है. अब जब वो ऐसे दबेगा, so what is going to happen? एसिड ऊपर जो फूड पाइप है, it will come here, where it will go in the food pipe. तभी हम कहते हैं ना यहाँ पर जलन हो रही है, यहाँ पर जलन हो रही है. Why? Because food pipe is here. That's why we feel that sensation of acidity. ठीक है, क्योंकि वो एसिड अब यहाँ पर जलन कर रही है. As I told you, what is the role of acid? It burns. ठीक है, वो जलाना शुरू करती है, तो वो हमें फील होता है. We complained about the acidity. Now to get the relief, हम क्या खाते हैं, as she told, हम इनो लेते हैं या फिर हम डाइजीन लेते हैं.
Why we should take it? Now, इनको कहते हैं antacids. What do we call it? Antacids. Anta means against. Note down beta is it? Anta means against. मतलब एसिड के अगेंस्ट. एसिड का कोई दुश्मन भी है. ओके, सो हु इज द दुश्मन हियर? दैट इज बेस. सो वी टेक बेस. अब बेस क्या करता है? बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है. रिएक्ट कैसे करता है? उसका जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है उसको लेस करता है. तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिड थोड़ा शांत हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी. अब कैसे होगी और ये क्या होता है? एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है? व्हाट डू वी कॉल इट? और वो बनाता क्या है? अच्छा, एक और चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं. फिर से हम टूथ पे जाते हैं. ठीक है, वी ब्रश आवर टीथ विद अ पेस्ट. क्या हम खाली ब्रश से ब्रश कर लें तो काफी नहीं होगा? उससे भी तो निकल जाएगा सामान जो भी फंसा है. Why we use applied paste on the brush, then we brush it? बिना पेस्ट के नहीं चलेगा? टेल मी. चलो आ जाओ फिर. कौन सी क्लास रहेगी? सनफ्लावर से नहीं बुलाया किसी को. जगजोत आ जाओ. जगजोत फ्रॉम द सनफ्लावर. Yes, turn on the mic beta first and go to the first bench so that I can see. Go back. Yes, now stand. Now tell me why there is need to apply that paste on the brush and then brush our teeth. हम तो कह रहे हैं कि हमने ब्रश से जो फंसा हुआ है उसको निकालना है. तो वो तो खाली ब्रश से भी हो सकता है. सो व्हाई देयर इज नीड टू अप्लाई दैट पेस्ट? क्यों हमने पेस्ट अप्लाई करना है? अच्छा, मुझे बताओ कि क्लास में साइंस सबसे अच्छी किसकी है? किस बच्चे की साइंस बहुत अच्छी है? किसके अच्छे मार्क्स आते हैं? 100%. हु गॉट ऑल 100%? जिसका नाम लिया वो खड़े हो जाओ. फटाफट आओ. कम फास्ट. हुज नेम ही टेक. चलो जल्दी से आओ. Yes, beta, you go and sit. Now you tell me, beta, why? Same question for you, and now I want answer from you. Because the paste is base. This is a paste. Base. Base. That's right. That's really right. Yes, he's right. Clap for him. Yes, he's right. Now sit down. That's good, beta. That's good. Wonderful. So yes, we apply toothpaste. इसको भी लिखो. Daily life we are using. In daily life we are using these acids and base. It is base. अगर by chance somehow bacteria already started releasing acid in our tooth, ठीक है, हमारे दांत में ऑलरेडी इसने एसिड निकालना शुरू कर दिया है, तो वो खाली ब्रश करने से नहीं जाएगा. What we need to use this base. तो बेस जब एसिड के साथ लगेगा तो वो जो एसिड है उसका असर खत्म हो जाएगा. अब ये क्यों होगा? कैन यू टेल मी? यहाँ पर देखो, दो जगह हमने एसिड बेस किया. ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट दे फॉर्म एंड व्हाट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड? कैन यू टेल मी दैट? एनी ऑफ यू? Okay, I'm giving you hint. हमने 3 classes का example लिया था. We took example of 3 classes. First was acid, second was base, and third one was what? Third क्या थी? Who remember? Third क्या थी? Yes, 7th row, middle row, third bench girl. आ जाओ. Middle row, third bench girl. Come fast. Yes, beta? Neutral. Neutral, that's right. Sit down. That side, beta. So when acid and base react, what they form? They form neutral solution or neutral salt. Generally, not always. ठीक है? Generally. So neutral salt
plus water and they also release heat. जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं they release heat also. और वो रिएक्शन जो ये अभी हो रहा है, what do we call it? We call it neutralization reaction. Note down this, beta. This is neutralization reaction, and because here heat is releasing, so in reaction where heat is releasing, this is called, इसको ऐसे बॉक्स में डाल के write down exothermic. It is exothermic. Thermic means heat and exo means out. मतलब हीट निकल रही है जब रिएक्शन हो रहा है. इसी का एक ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक. उसको स्टार करके साइड में लिखो, एंडोथर्मिक. In endothermic, in means it gives heat to the reaction, or we can say heat to the reactant. इनको heat देंगे तभी वो react करेगा. But here we are not providing any source of heat. ठीक है? So this is all about neutralization reaction. ठीक है? That happens inside our body. Now is it clear, everyone? Is it clear? Okay. So last thing that I'm going to tell you, or shall I ask you? Basis हमने पढ़ लिया है ना? We learned about basis. ये क्या होता है? What is this? Who can tell me? Any of you? Alkalis क्या होती है? So इसको भी नोट करो, note down. When base dissolve in water, it is called alkali. ठीक है? जब हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा को पानी में डालोगे तो पहले उसको हम बेस कहेंगे जब वो सॉलिड फॉर्म में है. बट व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर वी कॉल इट एल्कली. एंड नोट डाउन, सारे के सारे बेस डिसॉल्व नहीं होते पानी में, ओनली फ्यू. ठीक है? तो वी कैन से दैट, इसको भी एक स्टार करके लिखो, ऑल एल्कलीज आर बेस. ऑल एल्कलीज आर बेस. जो भी एल्कलीज है वो बेस ही है, क्योंकि बेस अगर जो पानी में डिसॉल्व होगा वो एल्कलीज है. बट नॉट ऑल बेस आर एल्कलीज. तो सारे के सारे मगर बेस एल्कलीज नहीं है, क्योंकि कुछ डिसॉल्व होते हैं. ठीक है? सो नोट डाउन दिस. सो दिस इज द लास्ट थिंग. ओके? और एक होमवर्क दूंगी मैं आपको, वो आपने क्या करना है, सॉइल के ऊपर है. नाउ आई एम गिविंग यू टू कंडीशंस. इफ सॉइल इज एसिडिक तो उसको हम क्या डालें कि वो बेसिक या न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए. इफ सॉइल इज बेसिक, सॉइल अगर बेसिक है, what should be added to make it neutral? So this is your homework that you have to do. Okay, this is your homework that you have to do. And in the next class I will ask. ठीक है? So note down this, and your math class is going to start. Last time we did about constant term, coefficient of the terms, okay, and the number of terms and highest power of the polynomial. Okay, first question complete किया था. Raise your hand, everybody. In your module, have you completed first question of algebraic expression? Today we are going to do the second question. Okay. Please raise your hand who have understood completely first question. Few children are taking out their module.
It is previous module only, algebraic expression which we did last time, beta. Students, please raise your hand who have done first question. Raise your hand who have completed first question. हाथ खड़ा करो बेटा. First question आपके पास था filling the blanks. Fill-ups था आपके पास. ओके आपने इसमें भरा था कि आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या है. हाथ खड़े करो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है तो. Shall we do it again? फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से करें हम. ओके फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे को फोर्थ पार्ट बताओ. लेट अस डू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 17x square minus 2x minus 4. We have to write about this. We have to write about the constant term. We have to write about the highest coefficient of highest power. Okay. Fill up all the columns. 1, 2, 3, 4. We have to write about all. First is constant term. What is a constant term in this? Constant. Row section. Lavisha. बेटे आगे आओ. Yes, माइक के पास आके बताओ मेरे को. Did you know what is the constant term in this? -4. -4. Yes, because इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ना तो x है ना y है. बिल्कुल ठीक है बेटा. Can you tell me coefficient of highest power of variable? 17. Coefficient of highest power of variable. हाँ जी दोबारा बताओ बेटा. What did you say? 17. 17. Very good. Second column में आपके पास आएगा 17. Very good. Next is number of terms. How many number of terms are there? 3. 3. Yes. This is 1, 2, and 3. Very good. Then the highest power of the unknown variable. Highest power. Highest power क्या है इसमें? 2. Highest power is 2. Very good, beta. Very good. Now, Keep silence. very good. Children who are sitting now, who are joining with them, give space to each other, beta. Settle down fast. Very good. Sunflower section जो बच्चे खड़े हुए हैं जल्दी से बैठ जाओ. We completed this question बेटा last time. फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने. कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, राइट. देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर आपको पता है कि x स्क्वायर है. इसका कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट इज द कांस्टेंट टर्म जो इसके साथ लगी हुई है कि हाईएस्ट पावर जो आपके पास वेरिएबल है उसके साथ नंबर क्या लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट. देन देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स मींस कि कितनी टर्म्स आपस में प्लस हो रही है. ओके प्लस कौन कौन सी हो रही है? 1, 2, 3. You will tell me कि this is 17x square minus 2x minus 4. You will say कि नहीं नहीं ये तो subtract हो रही है, प्लस नहीं हो रही है. Okay, so what we call them, what we see in them, we see like this minus 2x plus minus 4. हम इनको ऐसे देखते हैं. Then we count कि how many terms are added among themselves. कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं? 17x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 4 आपस में प्लस हो रहे हैं. सो दीज आर द टर्म्स. ये तीन इसकी टर्म्स है जो आपस में प्लस हो रही हैं. सो इफ वी कॉल द कांस्टेंट टर्म है -4 है. सेकेंड टर्म कौन सी है? -2x है. We will not call it +2x.
we will call it minus 2x because minus 2x उसमें प्लस हो रहा है. So take care बेटा, ये ब्रैकेट को आपने खुद मेंटली उसको देखना है. You have to see in the expression कि कौन सी टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं. If it is minus 2x, you have to tell that term is minus 2x जो कि उसमें प्लस हो रही है. Right? Think in that way. So this question we did last time also. We are starting from second question now. State the type of polynomials. अभी तक तो we were talking about expression कि ये सारी expressions होती हैं. ठीक है, ये जो आपने लिखी है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, पावर भी होती है वेरिएबल की, आपस में जो प्लस हो रही हैं सारी टर्म्स, उसको हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशंस है इनको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल आल्सो. ठीक है, तो आपको पढ़ना है स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. क्या आपने क्लास में किया हुआ ये क्वेश्चन ऐसे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, हैव यू रेड इट? प्लीज रेज योर हैंड. क्लास में किया हुआ है आपने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स? नहीं किया हुआ है. ठीक है, देन यू शुड सी, राइट डाउन इन द नोटबुक type of polynomials. Everybody will write down. Take out your notebooks. Type of polynomials. Please write down. पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है पहले तो? इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जैसे एक्सप्रेशन के अंदर. ठीक है, तो टाइप्स में कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट है आपकी मोनोमियल. राइट डाउन. मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब जिसमें हमारे पास एक टर्म होती है. और पॉलिनोमियल या फिर एन एक्सप्रेशन having only one term. Only one term, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो इसका, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. इसको हम बोल सकते हैं 3x अकेला, कुछ भी इसमें प्लस नहीं हो रहा, सिर्फ एक सिंगल टर्म है. इट कुड बी -7a, इट कुड बी -m अकेला, -m भी हो सकता है, ये भी एक मोनोमियल है. ओके, मोनोमियल का मतलब उसमें कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, दे आर ऑल मोनोमियल्स. देन वी हैव हो सकता है आपके पास, यहाँ पे देखो आपके पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है. यू कैन सी इट. यहाँ पे आपके पास वेरिएबल भी है x और कांस्टेंट 3 है. यहाँ पे वेरिएबल e है एंड कांस्टेंट -7 है, उसका कोफिशिएंट जो है. यहाँ पे वेरिएबल आपके पास m है और इसका कोफिशिएंट क्या है? m का कोफिशिएंट क्या है बेटा? m के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे? This is coefficient. Write down. This is coefficient. This is variable. ये तो आपको पता ही है. 3 को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, x को हम वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि x जो है बार बार चेंज होता जाएगा. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका? -1. कोफिशिएंट इज इक्वल टू -1. ओके, जब आप अकेला नेगेटिव साइन लिखा हुआ है वहां पे हम -1 हम खुद बोलेंगे. बेटा देखो आपके पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 उसके साथ साथ -1 -2 भी होते हैं. लेकिन जो अल्फाबेट्स है वो तो अकेले के लिए है ना, ABCD XYZ. -m को कभी सुना है आपने ABCD में कि -m भी कुछ होता है? नो. आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो तो नॉर्मली ABCD की फॉर्म में होते हैं ना, कोई साइन नहीं होता उनके साथ. आपके ये जो अगर नेगेटिव -m लिखा हुआ है तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -1 रिप्रेजेंट कर रहा है.
जो कि एक इंटीजर है. ओके, सो हियर कोएफिशिएंट इज -1 विच इज हिडन. आपको खुद ढूंढना है, उसमें से नंबर को ध्यान से देखिए, आपको खुद ढूंढना है कि यस -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ -m. इज इट क्लियर? m तो वेरिएबल ही है, वो आपको पता है. ठीक है बेटा. Then we have second is binomial. Write down binomial. हो सकता है आपने क्लास में भी किया हो ये. इसको रिवाइज करो, राइट इट अगेन सो दैट आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. ओके. Having two terms. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो. Having two terms. जिसमें दो टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे binomial. Bi means two. Okay. Nomial means terms. Having two terms. For example, टू टर्म्स के एग्जाम्पल दो. मान लो आपके पास आ गया 3x + 7. दो चीजें आपस में प्लस हो रही हैं. कोई और एग्जाम्पल दो. डेफोडिल सेक्शन. यस, फर्स्ट पेज पे गर्ल्स जो बैठी हैं, मिडल रो. जल्दी से मेरे को एक एग्जाम्पल दो कोई और बाइनोमियल का. कोई भी अपनी मर्जी से. नेगेटिव लो, वेरिएबल को चेंज करो, नंबर चेंज करो. वेरी गुड. कुछ भी सोच के बताओ. डेफोडिल से कोई भी स्टूडेंट आओ आगे. अदरवाइज आई एम गोइंग टू कॉल द नेम. हिमांशी. हिमांशी बेटी आगे आओ. वेरी गुड. बी ब्रेव. टॉक टू मी. ओके, शर्माना नहीं है. वट एवर यू नो, टॉक टू मी, टेल मी, आस्क मी, बी फ्रैंक. हाँ जी, एनी एग्जाम्पल. 4x हाँ बोलो. 4x + 5 + 5. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. सिट डाउन. रो सेक्शन से वन गर्ल इज हैज कम. हाँ जी, कोई और एग्जाम्पल बता रही हो बेटी आप. मैम 9a + 1 9a + 1. Very nice. These are all binomials. Very good. I appreciate those children who come forward to tell me. Okay? Take the opportunity. Take the opportunity to ask us. Discuss the things. Okay? किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी चीजें. ये नहीं कि बस हम बोल रहे हैं और आप लिख रहे हो. That's it. No. You will not understand in that way. ओके, तो आपको ये चीज पता चल गई कि आप यहाँ पे टू बाय की बात कर रहे हो, टू टर्म्स की बात कर रहे हो, तो आपको एडिशन साइन तो लिखना ही पड़ेगा. ओके, कैन आई टेक इट एज 9a - 1 आल्सो? कैन आई टेक इट? यस. ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है जिसमें 9a - 1 लिया हमने. इसमें क्या दो चीजें प्लस हो रही है? 9a एंड -1. इसमें क्या प्लस हो रहा था? 9a एंड 1. ओके, इसमें हो रही है 9a - 1. आई कैन राइट इट एज -9a - 1 ऑल्सो. ये भी एक आपके पास बाइनोमियल है. टू टर्म्स कौन कौन सी है? -9a एंड -1. ओके, so this is an important thing for you. So these are the examples of binomial. अभी आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल भी आता है. राइट डाउन थर्ड पार्ट. ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल आपको नेम से ही पता चल रहा है. ट्राई मीन्स 3. देयर शुड बी 3 टर्म्स. हैविंग 3 टर्म्स. ऐसी एक्सप्रेशन आपको लिखनी है जिसमें 3 टर्म्स आए. नाउ यू आर इन 7th क्लास. ट्राई टू यूज नेगेटिव साइन. अब आप बड़े हो गए हो, नेगेटिव साइन को ज्यादा यूज करो अपने एग्जाम्पल्स में, सोचने में, प्लस करने में, माइनस करने में. ओके, सो यूज इट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन योर इंटीजर चैप्टर. इंटीजर में यू रीड अबाउट नेगेटिव साइन, हाउ टू ऐड देम, हाउ टू सबट्रैक्ट देम. Trinomial having 3 terms. It means 3 terms will be added. Okay, Sansa section. Very good. Come forward, Jaskirat. Give me any example of trinomial.
Yes, Kirat, please come. Very nice. Very good, very good. Kuch bhi, any number. Any variable, be free. For example, very nice. 3x plus 3x plus 2a 2a. Yes. plus 5x. 5. बिल्कुल ठीक है. Very nice. Very nice. एक नेगेटिव वाला एग्जांपल भी दे दो. अब आप खड़े हो तो yes. Be here. कोई नेगेटिव वाला एग्जांपल दो. 3x 3x minus 1 yeah. x 1x Okay. minus 4. -4. बिल्कुल ठीक है. Very nice. Now you can say. We have chosen 3 terms which are adding among themselves. 3 terms आपस में ऐड हो रही हैं. इसमें कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं? 3x minus x and -4. कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x minus x minus 4. Now listen to me. most important thing is कि जब you talk about देखो बेटा यहाँ पे आपके पास 3x था 2a था. the x and 2a they are independent. 2a कुछ और है 3x कुछ और है. बट यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x and 1x मिलते हैं आपस में. they are like terms. अगर मैं 3x minus 1x करूंगी तो मेरे पास 2x आएगा. राइट अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2x minus 4 आएगा ना. तो ये जो टर्म आएगी ये कौन सी बन जाएगी? ये बाइनोमियल बन जाएगी आपके पास. इट विल बी बाइनोमियल. तो आपको 3 टर्म्स लिखने के लिए तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तीनों अनलाइक होने चाहिए. टेक केयर. ठीक है. तो आपको एक और एग्जांपल ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें 3x minus x square -4. पावर चेंज कर दो उसकी. पावर क्यों चेंज कर रही है? ताकि वो अलग अलग हो. बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो. एक दूसरे से मिलते ना हो. जिनको हम ऐड नहीं कर सके आपस में. ठीक है. सो दिस विल बी ट्राइनोमियल. टेक केयर. 3 टर्म्स तब काउंट करेंगे अगर वो तीनों इंडिपेंडेंट है. तीनों का आपस में कुछ भी मैच नहीं करता. दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इज इट फाइन? Then we call them first term, second term, third term. When they are same to each other, Just like here, 3x minus x. 3x minus x हमें पता है कि वो 2x होता है. Ultimately, it will become a binomial. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके बस वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारी वो ट्राइनोमियल जो है वो खत्म हो जाएगा. Okay. So this will be trinomial and this will be first one. Okay. Now one thing more. Polynomial. Polynomial. तो polynomial तो सारी की सारी हैं. Monomial means एक term, binomial means 2 terms, trinomial means 3 terms. 3 से ज्यादा जो होती हैं उनको कोई स्पेशल नेम नहीं होता. we call them polynomials. सिंपली पॉलिनोमियल बोलेंगे. उसमें 7 टर्म्स हो सकती हैं, 6 टर्म्स हो सकती हैं, मे बी 8 टर्म्स हो सकती हैं. ओके. तो पॉलिनोमियल कौन सी हुई? ऑल एक्सप्रेशन. सारी की सारी आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो सारी क्या हो गई? पॉलिनोमियल. ऑल एक्सप्रेशन क्यों बोला? 1 टर्म है तो मोनोमियल बोलोगे, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 4 terms and then you will call it not a special name, you will be calling it polynomial only. ठीक है. तो ये भी तो मोनोमियल पॉलिनोमियल थी.
मोनोमियल भी पॉलिनोमियल नहीं है, उसकी कहीं फर्दर टाइप है, तो सारी एक्सप्रेशन हमारी जो होती है वो पॉलिनोमियल होती है। ठीक है बेटा, एक लास्ट लिख लो जो आपको बार बार कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? कांस्टेंट नेम से ही आपको पता चल रहा है, विद नो वेरिएबल, जिसके पास वेरिएबल ना हो, वेरिएबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पॉजिटिव साइन ले लो, नेगेटिव साइन ले लो, यू कैन टेक इट 5, यू कैन टेक इट -10, यू कैन टेक इट 1/9, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए, जिसके साथ कोई वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई नहीं लिखा हो। इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली थिंग इज इट शुड बी विदाउट वेरिएबल। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसको देखो। आई विल बी आस्किंग यू, सारे नोट्स आपके सामने है, यू कैन सी देम। अब आप देखते जाओ कौन सी किससे मैच कर रही है। आई विल बी आस्किंग यू। डेफोडिल सेक्शन, हर्षदीप सिंह, come forward. Tell me about the first part. What do we call it? क्या बोलेंगे इसको फर्स्ट वाले को? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर ओनली पॉलिनोमियल? What do we call it? Polynomial. Polynomial. This is polynomial. Very good. First part is polynomial. You can write in the module only. Okay. First is polynomial. Take care of the spelling. Second part is how many terms? AQ plus BQ plus CQ. तीनों अलग-अलग हैं. Better sit down, beta. Very good. You can sit there. There are 3 terms. It will be trinomial. Very good. मेरे को सुन गया name. Children are sitting and speaking. This is trinomial. You can see there are 3 terms. Third one is without variable. There is no variable. So it will be constant polynomial. Constant polynomial. You can write in short form. Third one is constant polynomial. Fourth one is binomial. You can see there are 2 terms. हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. 2 terms आपको दिख रही हैं इंडिपेंडेंट. एंड फिफ्थ वन विल बी सिंगल टर्म. कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है उसमें. फिफ्थ क्या हो जाएगा? मोनोमियल. किसी को डाउट है, यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी. We discussed everything in the examples also. These are all different types of polynomials. Okay, I hope it is clear now. Come to third question, beta. Third question is write irreducible factors of the following terms. Irreducible factors. Suppose आपके पास 3x,y,z है. अगर मैं बोलूं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. ओके, यू विल से 3 into x into y into z. ये सारी चीजें आपस में, ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना रही हैं? 3xyz. तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये सारी क्या चीजें? These are all factors जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ओके बेटा, अब इनको फैक्टर्स तो ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ, 6th में भी पढ़ा हुआ. दे आर फैक्टर्स. दे आर कॉल्ड irreducible factors. Irreducible. You know why irreducible? क्योंकि हम उनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते और आगे इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. 3 को क्या 4 आगे ब्रेक कर सकते हो? नो. itself is a prime number. ठीक है, तो irreducible factors कौन से हुए?
प्राइम फैक्टर्स यू कैन से, जिनको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी नॉलेज, इंक्रीज योर नॉलेज बाय नोइंग द न्यू वर्ड। अगर यहाँ पे 13 के बदले में यहाँ पे 12 होता, फिर आप क्या करते? फिर आप इसको लिखते 3 into 2 into 2। ओके, वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नाउ। आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो कि इररिड्यूसिबल फैक्टर्स का मतलब है वी कैन नॉट ब्रेक देम फर्दर, दिस इज द एंड। इसका मतलब उनके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के कोई आगे किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो उनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, राइट? So these are called irreducible factors. So we are going to write the irreducible factors of these all. Third question. First part is 7p square p square q. Very good. जल्दी से इसके irreducible factors कौन कौन से होंगे? Everybody knows. Start writing. अपने आप लिखो. Then check from the board. Everybody write down. I'm writing here, you can check it. 7 into P into P into Q. Who have written in this way? Raise your hand. Very nice, very nice. Rose section, very good. Daffodil also. Sunflower, sunflower section. Very good, very good. Hands down. आपने पूरा का पूरा उसको खोल के लिख दिया, जो कि आगे ब्रेक नहीं हो सकते. These are the irreducible factors. ओके, सिमिलरली आपने बाकी करना है. इसका मैं डी पार्ट आपको करवा रही हूँ. BNCR होमवर्क यू विल बी डूइंग. डी पार्ट इज -5x² y² z. दिस इज -5. डू इट योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट. वेरी गुड. आई विल बी राइटिंग शॉर्टली ओवर हियर. आंसर मैं लिखने वाली हूँ, देन यू कैन मैच इट. वेरी गुड. These are irreducible factors. Here number was -5. Take care. -5 एक अलग से एक नंबर था, जो कि एक इंटीजर है. हम उसको -5 ऐसे लिख सकते हैं. ओके, इसके साथ एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो. मॉड्यूल में नहीं है, बट आई वांट टू टेल यू, if it is like this, -PQR, what would you do? -PQR. It is not in the module. You write it for your knowledge. What should be the number here? PQR is seen. सबको दिख रहा है. What should be the number then? It will be -1 into P into Q into R. We cannot write -P, क्योंकि P तो कभी नेगेटिव नहीं होता. ABCD में P तो माइनस नहीं होता ना. माइनस कौन होते हैं? नंबर्स नेगेटिव होते हैं. Integers are negative, not the alphabet. So we will be writing -1 separate P, Q and R. तो इसके 4 फैक्टर हो गए आपके साथ, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन था. ठीक है बेटा. नाउ कम टू assertion reason. Assertion reason. First question is assertion 3x plus 5x square minus 6 is an algebraic expression. क्या ये algebraic expression है? First वाली assertion. Raise your hand who say true. जिनको लगता है ट्रू है ये. वेरी गुड. दिस इज ट्रू. assertion is true. Very good. Reason. Algebraic expression is formed from variables, constants using different operations. Operations means कभी आप प्लस लगाते हो, कभी माइनस लगाते हो, कभी मल्टीप्लाई लगाते हो. ठीक है, तो इनको ऑपरेशंस बोलते हैं. तो एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होती है? जिसमें हमारे पास वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, एडिशन साइन होता है, माइनस साइन होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो इनको सारों को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, तो आपकी ऑप्शन इसमें क्या आएगी? ए. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. फर्स्ट वाज सिंपल.
ओके, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको नेम भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि हम उसको क्यों बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ओके, माइनस साइन भी आ रहा है, so many things are happening. Second question is assertion. I'm reading it. Expressions are made up of terms. Expressions are made up of terms. चाहे एक टर्म हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो या तीन से ज्यादा हो. Expression is made up of terms. Raise your hand who say true. Yes, this is true. Reason. An expression with two unlike terms is called binomial. Unlike, जो आपस में मिलती ना हो. Is it true? Yes, this is true. दो टर्म्स जो कि अलग अलग हो तभी हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे. अगर वो सेम होंगी तो आपस में प्लस हो जाएंगी. ठीक है, so it will be an, they are not related actually, so option will be B. Please write down. Understand also. कोई डाउट है खड़े होके पूछ लो. Raise your hand and come forward to ask your doubt. Third question is assertion. Factors of the term 4xy are 4x and y. जल्दी से हाथ खड़ा कर दो. अभी अभी आपने किया है सारा कि फैक्टर्स कैसे लिखते हैं किसी नंबर की. Third question, assertion. Factors of 4xy are 4x and y. Is it true? Yes, बेटे आप इसको 4 into x into y लिखो या फिर उसके फैक्टर्स आप लिखो कि 4x and y है, एक ही बात है. इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, doesn't matter. ओके, अगर मैं आप बोलोगे कि 4xy की कॉपी जो है फैक्टर्स है 4x and y है तो इट इज ओके. उसको इस फॉर्म में लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है. सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. रीजन इज फैक्टर्स मे बी न्यूमेरिकल एज वेल एज अलजेब्रिक. न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? नंबर, जैसे 4 है. अलजेब्रिक का मतलब क्या है? वेरिएबल्स x and y. क्या हो सकता है ऐसा कि किसी भी टर्म के फैक्टर जो है वो नंबर भी है और वेरिएबल भी है? डोंट टॉक डेफोडिल सेक्शन चिल्ड्रन. आई कैन सी यू. प्लीज रेज योर हैंड हु से कि फैक्टर्स जो होते हैं न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं. होता है क्या ऐसा? यस यस. सारे यहाँ पे आपने क्या किया? यही तो किया है. नंबर भी आ रही है, वेरिएबल भी आ रही है, नंबर भी आ रही है, वेरिएबल भी आ रही है. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो आपकी ऑप्शन इसमें आएगी. थर्ड की ऑप्शन क्या आएगी? बी. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज लास्ट. A term is a product of factors. Term is a product of factors. जब हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास एक टर्म आ गई. यहाँ पे भी हमने क्या किया? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक टर्म आ गई -5x² y² है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि टर्म हमारे पास कहां से आती है? बाय प्रोडक्टिंग ऑफ द फैक्टर्स. So fourth is also true. Fourth assertion is true. ठीक है? And reason is the coefficient of y is 3. ये तो दिख ही रहा है सबको. 3y में हमारे पास 3 जो है उसका आंसर लिखा हुआ है. तो ये हमारे पास का. So this is also B option. Assertion reason में किसी को डाउट है? You can stand and ask me. Next time we will be doing MCQ also. ठीक है बेटा? Please revise these all. Please revise these all questions. This is very very important chapter. You will be doing in 8th also. Okay beta, see you next time. Bye bye.